इधर कांग्रेस लीडरों के लिए घर वापसी की तैयारियां चल रही है। सीधा दिल्ली चलेंगे, जहां पे इस वक्त कांग्रेस इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग has come back to the home. Some of our relatives leaving the house with some misunderstanding and coming back to the home with great satisfaction is a बहुत खुशी बात है. Therefore, we are really happy today. Jairamji rightly pointed out that Bharat Jodo Yatra is on the path of culmination. January 30th is the most important day for this country. The Yatra, which starts from September 7th onwards from Kanyakumari, is going to culminate on 30th January at Jammu and Kashmir. Not only Congress people, the people from all like-minded political parties are joining us in Jammu and Kashmir, like Farooq Abdullah ji, Mehbooba Mufti ji. Those people are all joining us. This yatra become a big movement in this country. Therefore, if anybody have a Congress mind in his heart, cannot sit ideally. That is why all these leaders who left us 2 months before took a strong decision to come back in the parent organization, Indian National Congress, and to work with Rahul Gandhi and to make the Bharat Jodo Yatra in a great program in Jammu and Kashmir. I would like to welcome Shri Tara Chand ji, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Pirzada Muhammad Said, former PCC President and 3-time Minister of Jammu and Kashmir, Thakur Balwant Singh, former MLA, Muhammad Mushafir Pare, Mohinder Badwa, Bhushwan Dwagra, Vinod Sharma, Narendra Sharma, Naresh Sharma, Ambrish Magrotha, Subhash Bhagat, Santosh Manhas, Badrinath Sharma, Varun Magotra, Anuradha Sharma, Vijay Targotra, Srimati Chandra Prabha Sharma. 17 big leaders. These are all. I will request Degjini ji to go into the details of their profile, but you can see that ex-Deputy Chief Minister, ex-PCC President, all other ex-MLAs, those who went 2 months before from our party are coming back. This is only a beginning. Not only these people. I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra. Therefore, on behalf of All India Congress Committee and on behalf of all Honorable Congress President, I am sincerely welcome all of these leaders. These leaders, I think they are taken a leave for 2 months from the party, and now the leave is already over. They are already joined back. Thank you. वेणुगोपाल जी, थोड़ा करेक्शन करना चाहिए. ये पार्टी नहीं छोड़े थे, ये छुट्टी के लिए बाहर गए थे और ये वापस छुट्टी के बाद वापस आए हैं. तो मैं अभी रजनी पटेल जी से गुजारिश करूंगा कि असली में 19 लोग वापस लौट रहे हैं छुट्टी के बाद, पर आज 17 लोग यहां मौजूद हैं. 2 आ नहीं पाए,
पर 19 लोग, और ये पहला चरण है, और भी आने वाले हैं। मैं रजनी जी से गुजारिश करूंगा कि इनका परिचय कराइए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें। नमस्कार। राहुल जी का जो जनसैलाब निकला हुआ है, उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए डीएपी के लीडर्स हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी में। और सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उनको भूला नहीं कहते। वैसे सब लोग, उनको रियलाइज हुआ है कि हमारी पार्टी, हमारी पहचान कांग्रेस ही है, इसलिए कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ताराचंद जी हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम है, जो स्पीकर भी थे, लीडर ऑफ सीएलपी भी थे, और स्टेट जब डीएपी था तो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, वो वाइस चेयरमैन। पीरजादा मोहम्मद सईद फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 3 टाइम के मंत्री रह चुके हैं और डीएपी के एक्स वाइस चेयरमैन हैं। ठाकुर बलवान सिंह फॉर्मर एमएलए है और वो एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी के हैं। मोहम्मद मुजफ्फर परे जो फॉर्मर एमएलसी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वर्किंग कमेटी के मेंबर थे डीएपी के। मोहिंदर भारद्वाज जी, एडवोकेट मोहिंदर भारद्वाज जी जो हमारे सीनियर एडवोकेट है और 3 टाइम प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भूषण डोगरा जी फॉर्मर वाइस चेयरमैन, वो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट मिनिस्टरियल स्टेटस उनका था। श्री विनोद शर्मा जी एक्स चेयरमैन कांग्रेस सेवा दल, एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी। नरेंद्र शर्मा एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी, शुरू होगी, वहां उस सिटी के वो 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। अमरीश मगोत्रा एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कटरा। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है, तो कटरा के ये म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट बीसीसी सांबा, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी। संतोष मनहस सेक्रेटरी डीएपी। बद्रीनाथ शर्मा एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी। वरुण बगोत्रा जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड सीनियर यूथ लीडर डीएपी। अनुराधा शर्मा महिला, उनके डीएपी की महिला कांग्रेस की, डीएपी की महिला की लीडर। विजय तरगोट्रा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हीरानगर। श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा महिला लीडर डीएपी। तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा कि ये छुट्टी के लिए गए थे और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह से वातावरण, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद जाती हूँ जम्मू कश्मीर, एकदम वहां पे माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि वहां उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे हमारे लोगों ने संपर्क किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे यात्रा, यूपी में ज्वाइन करी थी, और उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में उनको वेलकम करेंगे। हमारे तारिक अमी जी कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने भी सम्मति दी है और बहुत आनंद से बोला है कि हम सम्मिलित होंगे। और मुजफ्फर शाह जो है, कांग्रेस लीडर के लिए घर वापसी की तैयारियां लगातार जारी है और आज भी साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद, साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद और एमएलए बलवान सिंह के अलावा 17 लोग कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो गए। इस खबर पर मजीद चर्चा के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज मेरे साथ ज्वाइन किए हैं। सनम, किस तरह से आप इसको देख रहे हो और आने वाले, और कांग्रेस को इससे क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, जरूर अगर आप फायदे की बात करें तो कांग्रेस को साफ जाहिर है नेशनल लेवल पे कुछ नाम है, तो नाम बिकता है दुनिया में। आज नाम बिकने से जम्मू कश्मीर में ना सही, लेकिन नेशनल लेवल पे कांग्रेस को या लोगों में, जो मुल्क के बाकी सब लोगों में, कांग्रेस को लिए एक बड़ा सा जो है फायदे की बात नहीं लगी। लेकिन ओवरऑल हमें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को फायदे की अगर बात करें तो कांग्रेस को कोई बड़ा इतना फायदा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ग्रुपिज्म जो है वो पहले से ही था। और अब ताराचंद का, जिस तरह हम कहें ताराचंद वापस कांग्रेस जा रहे, ताराचंद और पहले भी
कुछ कांग्रेस के लीडरशिप में ग्रुपिज्म था, आपस में नहीं बनती, तालमेल नहीं था, और वो अलग अलग जो गुटबाजियां थी कांग्रेस में वो थी। इससे एक बार फिर ताराचंद के उधर जाने से एक बार फिर वो गुटबाजियां जो है वो शुरू होंगी। और अगर हम पीरजादा सईद की बात करें, पीरजादा सईद भी देखिए 2-4 दिन ही पहले जो कांग्रेस के रियासती जो साबका प्रेसिडेंट है जी मीर, वो पीरजादा के इलाके में गए, यूं कहें उनके गांव में गए और वहां उन्होंने एक बड़ा जलसा करके दिखाया। उस जलसे से साबित हो गया कि वहां पे पीरजादा सईद की ग्राउंड पे, गांव में, इलाके में क्या पोजीशन है। तो वो जो है वहां पे जिस तरह से पीरजादा सईद पे इल्जाम लगाए गए, जी मीर ने जब अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने बताया कि ये टेंटेड हैं, ये करप्टेड हैं, ये बाकी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो सामने आएंगी। और उन सारी चीजों के बाद अब देखना हमें ये होगा कि ये लोग जब वापस कांग्रेस में जाएंगे तो जो पहले गुटबाजी थी कांग्रेस में, जो ऑलरेडी गुटबाजी के लिए काफी मशहूर है, क्या वो गुटबाजी भी चलती रहेगी या उस पर कोई रोक लगेगी, विराम उस पर लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर पिछले कई दिनों से चूंकि इल्जामात जब ये कांग्रेस से निकले तो इन पे इल्जाम लगे, कांग्रेस की सदर, कांग्रेस की लीडरशिप ने इन पे इल्जाम लगाया कि इनकी बेस खत्म नहीं है, पीरजादा के पास ये करप्शन में इन लोग लीडर हैं, ये करप्शन में मुलविस हैं, ये टेंटेड हैं। इवन के गुलाम नबी आजाद ने भी इस तरह के इन पे इल्जाम लगाए। अब ये कांग्रेस में वापस गए तो एक सवाल जरूर लीडरान से उठेगा, वो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, जी मीर से भी पूछा जाएगा। सनम आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त लाइव ताराचंद खिताब कर रहे हैं, तो पहले इनका सुनते हैं। के बहुत ही शुक्रगुजार हैं श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके मशकूर हैं, मैडम सोनिया जी के मशकूर हैं जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाजत दे दी, श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशकूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होके हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया, होने का मौका दिया। पीरजादा जी। मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहिबान, मैं तमाम मीडिया का शुक्र अदा करता हूं कि आपने यहां तशरीफ लाया और हमारी चंद बातें आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूं, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे एक भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए, जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा दिया है कि ये लीव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूं और मैं माफी मांगता हूं कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं की है और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालिहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर गामजन किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कभी भूल नहीं जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में जहां आजकल आतंकवाद चल रहा है और कोई कमी नहीं आई है पिछले 8 साल से, मैं समझता हूं कि आतंकवाद बढ़ गया है, कभी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म, मुल्क में सेकुलर ताकतें और जम्मू कश्मीर में सेकुलर
ताकतें मजबूत होने की जरूरत है। इसमें हमारी पार्टी का सरफेस रोल है और जितनी मजबूत दिल्ली ऑफिस कांग्रेस से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां पे ताराचंद, पीरजादा महमूद सईद, बलवंत सिंह के अलावा 17 लीडरों ने एक बार फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगा क्योंकि 17 डीएपी के मेंबर आज फिर से कांग्रेस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार